Good morning, class 10. In the previous videos, we were discussing chapter number 3, a pair of linear equations in two variables. Okay, and we have been discussing the algebraic methods to solve a given pair of linear equations. Okay, and we had already discussed the two methods that were the substitution method. First one, substitution method, and the second one was elimination method. So I hope you have clearly understood the difference between the two and the uses of the two methods. Now today in this video lecture you are going to understand, I am going to explain you the third algebraic method to solve a pair of linear equations in two variables, that is the cross multiplication method. Okay, so I have given a general derivation of the cross multiplication method. Okay, after this derivation, try to understand this derivation. After this derivation, I will tell you exactly the cross multiplication method. Okay, so this is the base for that method. Actually मैं आपको directly भी बता सकती हूँ कि सीधा ये करना है, this is the cross multiplication, you will do this and you will solve the question. Okay, मैं directly भी आपको बता सकती हूँ, but this general derivation I am giving you so that you can relate the three methods and you can know the gist of finding the solution of a pair of linear equation, कि हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए what we put into that and how these three methods have been differentiated. Okay, to clear that, there's a general derivation. Now let us start with this. So cross multiplication method, this is the general derivation. Let us consider the linear equations in two variables as, ठीक है, as a1x plus b1y plus c1 equals to 0. आपको पता है that these are the general form for a pair of linear equations in two variables. Okay, so a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. First equation मैंने mark कर ली. Marking the equation is important. a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Second equation आपने mark कर ली. Okay, so step 1 में आपने क्या किया, multiply 1 by b2. मैंने first equation को b2 से multiply किया, b1 already यहाँ पर है, मैंने b2 से multiply किया, एंड 2 by b1 और सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई किया. बेसिकली जो आप एलिमिनेशन में करते हैं ना, मैं वैसे प्रोसीड करने लग रही हूँ. एंड मैं क्या कर रही हूँ कि वेरिएबल y के कोफिशिएंट्स को मैं सेम करना चाहती हूँ सो दैट आई कैन सब्ट्रैक्ट देम एंड एलिमिनेट द y. ओके, दिस इज द सिंपल थिंग दैट आई हैव टू डू. सो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 में बाय b2 एंड 2 में बाय b1. आफ्टर दिस what I get, this is third equation. पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, b2 का b2 a1x, b2 b1y, b2 c1. ओके, b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2. इनको 3 and 4 इक्वेशन मार्क कर दिया आपने. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4. ओके, सो सिंपली क्या होगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस ये वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट होगा, थर्ड में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो x कॉमन आ जाएगा. मैंने पहले ही बाहर रख लिया. यहाँ पर क्या होगा आपका b2 a1 माइनस b1 a2 आपने लिख लिया. नेक्स्ट में b2 b1 माइनस b1 b2 ये लिखा, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2. ओके, हेयर b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल्स टू 0. तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, y एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया. नाउ व्हाट यू हैव, b2 a1 माइनस b1 a2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू b1 c2, 0 के उधर ले गए हम, b1 c2 माइनस b2 c1. ओके, x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन ये पूरा आपका डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई. बेसिकली आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, मीन्स जनरल फॉर्म में आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिया. x का मतलब x की वैल्यू फाइंड कर ली, एक सोल्यूशन फाइंड कर लिया आपने, एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी ये आ गई. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन. आई मार्क्ड इट एज फिफ्थ. आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2. अब करते क्या, एलिमिनेशन में यही तो करते हैं ना फिर, कि अब आपको x मिल गया है तो y निकालने के लिए या तो मैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दूं, और पुट करने के बाद एंड सिंप्लीफाई करने के बाद, जो सिंप्लीफिकेशन मैंने डिटेल में यहाँ नहीं दिखाया है, बट जैसे सिंप्लीफिकेशन होता है वैसा ही सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, जिसको आप मार्क करेंगे एज इक्वेशन 6.
So these equation 5 and equation 6 are basically the x and y and the solution of the equation 1 and 2. Okay, यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक मेरा काम complete हो चुका है. But one more thing that we are going to understand from this is, so यहाँ तक आने के बाद you have derived the values of x and y, basically the solution of these two equation. ठीक है, और यहीं से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाता है. मीन्स हम यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी देख सकते हैं. बट हमारे पास 2 केसेस एक्सप्लेन किए गए हैं दैट लीड्स अस टू द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, है ना, ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड द टू चेक देयर कंसिस्टेंसी. ठीक है, वो वाली कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है दोबारा. सो 2 केसेस हमारे पास आते हैं. फर्स्ट वन इज दिस a1b2 माइनस a2b1, या तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो. ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो आपका क्या करते हैं, आप ये a2b1 को उठा करके इधर ले आइए, समझ रहे हैं, और उसके बाद a1 बाय a2 लिख लीजिए, b1 बाय b2. मतलब आपके पास केस आ जाता है, डेरिवेशन आ जाती है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, एंड विच इज बेसिकली द यूनिक सोल्यूशन, जो यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ सेकेंड केस क्या हो सकता है, दैट दिस a1b2 माइनस a2b1 जो डिनोमिनेटर है दैट इज 0, वो आपका इक्वल टू 0 आ रहा है. तो अगेन आपने ये ट्रांसपोजिशन किया, इधर ले गए, देन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 आया, इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट के इक्वल हमने लेट कर लिया कि जब ये इक्वल आ रहे हैं रेशियोज तो ये किसी ना किसी k रेशियो के इक्वल आते हैं ना हमेशा. सो दैट्स वाई हमने ये लेट कर लिया. ये लेट करने के बाद व्हाट वी गेट दैट दिस a1, जब मैं इसको और इसको पुट करूंगी एक साथ तो मैं यहां से क्या निकाल सकती हूँ कि a1 इज इक्वल टू k a2, है ना, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, एंड b1 इज इक्वल्स टू k b2. a1 b1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली. a1 b1 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 आपकी क्या है, ये वाली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. आप देख सकते हैं पीछे जाकर. यहां पर आपने a1 की वैल्यू पुट करी k a2, b1 की वैल्यू पुट करी k b2, सिंप्लीफाई किया, आपको मिला k a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो इक्वेशन 2 और 7, इक्वेशन 7 तो आपकी ये है, और इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, 2 आपकी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन थी. तो इक्वेशन 2 और 7 तभी सेटिस्फाइड होंगे अगर c1 जो आपका इक्वेशन 1 में था ना, हाँ ये c1, ये इक्वेशन 7 में जो c1 आया है, ये c1 आपका इक्वल्स टू हो k c2 के, क्योंकि a2 तो हो चुका, a1 हो चुका k a2 के इक्वल, b1 हो चुका k b2 के इक्वल, तो c1 को भी होना पड़ेगा k c2 के इक्वल. ठीक है, तभी ये इक्वेशन 2 और 7 सेटिस्फाइड होंगे. सो इट इम्प्लाइज c1 बाय c2 इक्वल्स टू k. तो यहां से ये निकल के आता है कि c1 बाय c2 इक्वल टू k आएगा. ठीक है, सो देयरफॉर अगर आपका a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू k आ जाता है, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो ये आपके जो ये यहां से लेकर जो मैंने ये केसेस डिस्कस किए हैं, केसेस 1 एंड 2, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है. थोड़ा सा बस ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ वी कंपेयर द रेशियोज, और हमें ये पता चलता है दैट द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी है या नो सोल्यूशन है. अगर c1 इज नॉट इक्वल्स टू k c2 होगा तो नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन आ जाएगी कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2. ये वाली कंडीशन आ जाएगी, नो सोल्यूशन. सो दिस इज अ नाउ यहां से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दोबारा से स्टार्ट होता है. देखिए ध्यान से, हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में x और y की वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, यू कैन राइट द सोल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 5 एंड 6 इन द फॉलोइंग फॉर्म. आपका 5 और 6 में जो सोल्यूशन आया है आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया. देखिए क्या लिखा है, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1. और ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, देखिए ये साइड में चला गया. मतलब मेरे पास ये था ना, आप ये समझ लीजिए कि आपने x के अपॉन में मैंने क्या लिखा है, पीछे अभी जो शीट आपको दिखाई थी, दैट इज x अपॉन दिस b1 c2 माइनस b2 c1. मतलब x के अपॉन में आप ये ले आए हैं. ठीक है, और यहां पर रह गया है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. वैसे ही सिमिलरली y के अपॉन में आप ये टर्म ले आए हैं, ये सारी टर्म y के अपॉन में ले आए हैं, एंड यहां पर रह गया है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. क्योंकि ये आपका ये और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक ही रेशियो को, एक ही कांस्टेंट को इंडिकेट करेंगे. दैट्स व्हाई हमने इन्हें साइड में रखा. तो आपने
अब आप ये समझ गए होंगे आई थिंक। तो सोल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सोल्यूशन एक्सप्रेस करने का तरीका यही है दैट यू राइट x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, और जो आपका वो डिनोमिनेटर वाला टर्म था सेम, वो आपका दिस इक्वल्स टू दिस आ गया। मीन्स जब मैं इसको गायब कर देती हूँ ना अगर, तो आप देखो x इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो आपको वही मिलेगा जो आपका x था पीछे इक्वेशन 5 में। ठीक है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं। वैसे ही अगर x को मैं इग्नोर करूंगी तो y इज इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, जो आपका इक्वेशन 6 में सोल्यूशन है y का। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसको कैसे लिखते हैं। बेसिकली यहां से सोल्यूशन आ गया, दिस इज द सोल्यूशन इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मैं आपको एक और टू रिमेंबर दिस कि आप ये b1c2 है, इसमें आप कंफ्यूज ना होए, इसको रिमेंबर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक या मेथड है, एक तरीका है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो क्लास 10 आप ये लिखिए, उसके बाद इसको, ये आपने लिखा है जो, इसको रिमाइंड करने का तरीका बेसिकली ये है। क्या करते हैं, x, y और 1 आपने लिख लिया, ठीक है। तो x, y, 1 लिखने के बाद व्हाट यू विल राइट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम b। आपको याद रखना है, एक फर्स्ट स्टेप तो ये याद रखना है कि x, y, 1 लिख लेना है, और दूसरा सीक्वेंस याद रखनी है b, c, a, b। ठीक है, मतलब b से स्टार्ट कर रहे हैं, b, c, a, b, c, उसके बाद a आएगा और फिर से b आएगा, b, c, a, b। ये इक्वेशन, ये सीक्वेंस याद रखनी है। उसके बाद बस ये लिखते जाएंगे, आप क्या लिखेंगे, b1, b2। ठीक है, b हो गया पूरा। उसके बाद c1, ये x इनके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, c1, c2 इनका प्लेस यही होना चाहिए, b, c और फिर a1, a2, a एंड अगेन b, b1, b2। तो b, c, a, b, x, y, 1 लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप b, c, a, b। उसके बाद ये एरोज मार्क कर दीजिए, और एरो कैसे होंगे, इस टाइप से। आपने एरो का जो मार्किंग है वो c1 की तरफ है, c2 की तरफ है, इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो इसी टाइप से आप एरो मार्क करेंगे। आपने ये एरो मार्क कर दिए, ये एरो इसके साथ, ये एरो लाइक दिस, ये एरो आपने मार्क कर दिए। नाउ व्हाट यू विल सी, ये आपने लिखा, एरो मार्क कर दिए। अब जब आपको सोल्यूशन लिखना है ना, अब हम इस वाले स्टेप से इस पर जा रहे हैं, ओके, बैक जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखा हुआ है, इस वाले स्टेप से इस पर जा रहे हैं, क्योंकि पहले आप ये लिखेंगे सोल्यूशन करते वक्त, फिर ये इस पर आ जाएंगे। कैसे, x अपॉन में, अब आपको सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो यू विल राइट x अपॉन b1c2 माइनस b2c1। समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसा नहीं कर देना माइनस, मतलब इनको ऐसे नहीं कर देना कि c1, a2 फिर बीच में से किसी को भी किसी के साथ माइनस कर दिया, नहीं। ध्यान रखना b1c2 माइनस, अगर आप ऐसे करेंगे ना माइनस और वो, तो आपका सोल्यूशन तो निकल जाएगा, लेकिन आपके जो साइन होंगे ना वो मिस्टेक हो जाएंगे, मतलब आपका सोल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्लॉकवाइज में ध्यान रखिए, b1c2 फिर माइनस आएगा b2c1, ठीक है, ये x अपॉन में आ गया, इज इक्वल टू y अपॉन में c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, ऐसे जाएंगे हम, c1a2 माइनस c2a1, ठीक, एंड फिर 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, मीन्स नीचे से फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे यहां से स्टार्ट होके फिर ऐसे क्लॉकवाइज। ओके, सो इस टाइप से आप लिखेंगे, मतलब ये आपका याद करने का तरीका। फिर उससे इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इस सोल्यूशन में लिखेंगे तो यहां से आप सोल्यूशन निकालेंगे। मीन्स इक्वेशन के बाद फर्स्ट स्टेप आपका ये लिखना है और फिर सेकंड स्टेप आपका ये लिखना है। मैं एक एग्जांपल लूंगी अभी सॉल्व करने का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, then you will be clear about this. So this is the cross multiplication method, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कोफिशिएंट्स की। ओके, सो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो मैंने आपको जनरल डेरिवेशन बताई है पूरी वीडियो में, दैट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप इसको नोट्स में लिखिए अपने, एंड फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, क्वेश्चन आपको इतने से में ही हो जाएगा, इतने पार्ट में ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। ओके, सो नाउ दिस इज द एग्जांपल सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर बुक एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 में से ही ये एक पार्ट है, तो सिंपल सा पार्ट है, स्टेप वही रहेंगे।
2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8. ये आपकी 2 इक्वेशंस थी. मैंने इनको ट्रांसपोज करके इधर पुट करके आपका लिख लिया है. इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क कर लिया है. मीन्स ये आपकी हो गई है अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. क्लास 10 आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इक्वेशन देखते ही आपको ये समझ में आ जाए कि आपके कोफिशिएंट्स क्या हैं, a1 क्या है, b1 क्या है, b2 आपको लिखना ना पड़े बार बार. अगर आप वो अवॉइड कर सकते हैं सो यू कैन डू दैट. और सोल्यूशन को बेटर प्रेजेंट करने के लिए आप लिखेंगे एंड फास्ट लिखेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू. ठीक है. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करने के लिए व्हाट यू विल डू, x y 1. पहला स्टेप हमारा ये था, हमने लिख लिया x y 1. नाउ क्या था हमारा BCAB. ठीक है, मैंने आपको बताया BCAB, B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2. ओके, सो बेसिकली आपका x और उसके बाद B1 B2 मतलब ये 1 2 और आपका C1 C2 मीन्स -5 -8. x y 1 दोबारा से लिख लेंगे. A1 A2 मीन्स 2 and 3. ओके, एंड योर B1 B2 इज अगेन योर 1 and 2. ओके, सो दिस इज योर BCAB. नाउ इनके बीच में आपने एरो पुट किया and just writing the solution. ठीक है, writing the solution x upon what will be the solution? The solution is x upon 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ डायरेक्ट जाएंगे. ठीक है, -8. उसके बाद माइनस आएगा 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ -10 इज इक्वल टू y. -5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -15. माइनस आएगा -8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 माइनस इधर से यूं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3. ठीक है, सो इट विल बी x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1. ओके, 1 अपॉन 1. सो एक बार आप इसको इसके लिए इक्वेट करेंगे, मीन्स x बाय 2 इक्वल्स टू 1 एंड y बाय 1 इक्वल्स टू 1. सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, y is equals to 1 is the solution of the given pair of linear equation. So this is the cross multiplication method. Okay, we forgot to put arrow here. तो ये arrows आप इस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे, then this and this is the solution. This is the simplest method. और मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में that cross multiplication method is fast method, very fast method. ओके, फास्ट कैलकुलेशन होती है. तो एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें. बट सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ओके, दिस इज अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ यू कैन मूव फर्दर टुवर्ड द एक्सरसाइज 3.5. ओके, सो थैंक you class for watching the video. Please share to other students also so that these videos can help them also, and stay happy and stay safe at home.